Minister for Transport and Highways, one of the most dynamic performers of the Modi Sarkar. Can we have a warm round of applause as we welcome the former BJP President Nitin Gadkari. Gadkari ji, welcome. We know it's a very special period for you and that you've stayed back, especially in Delhi. Ordinarily, you'd be in Nagpur at this time, so we're delighted that you stayed back for the conclave. Thank you, sir. So with us, to give us a sense of the challenges and opportunities in the electric vehicle space are two of the pathfinders of the industry. Jitendra Sharma is the Managing Director and founder of Okinawa. Ketan Mehta is the founder and CEO of HOP Electric Mobility. So welcome to this session on Mission Electric, how India is moving to a green economy. Gadkari ji, can I begin by asking you to talk about your vision for electric mobility in India and how soon you see India moving from being a country powered largely by vehicles which run on fossil fuels to a country which predominantly runs on electric mobility, and do you see it happen at all? Actually, the most important problem which our country is facing, that is the problem related with the pollution and the economy. Our import bill is presently up to 8 lakh crores. And within 5 years, it will go up to 25 lakh crores. And by using of this petrol and diesel, we are going to generate air pollution in the country. And today we need to save this country from air pollution, water pollution, and sound pollution. So import, substitute, cost-effective, pollution-free and indigenous. The solution is the most important sector which is important for the country is automobile sector, and which is creating maximum pollution because of using of petrol and diesel. Presently, the turnover of this sector is 7.5 lakh crore, and the export is 3.5 lakh crores. Overall GDP contribution is 7.1%, and manufacturing GDP is 49%. The most important thing that this is the number one sector in the country, creating job for 50 million people. And this is the number one automobile manufacturing sector which is supporting to our economy. And now, my dream is to make Indian automobile sector as the world leader, the number one in the world. The all reputed brand in the world, all are present in India. And by using alternative fuel and electric and other technology, I am confident that we are going to be number one within 5 years, number one in the world. One of the important, interesting thing about electric vehicle is, electric car sales increased by 140% globally compared to previous year. This is the fact. Government across the world spent $14 billion to support e-car sales. So how you can imagine how potential is that? $125 billion spent on purchase of EV across the world. The globally public charging station reached to 1.3 million units, and world is exploring charging option for heavy-duty electric trucks, development of mega chargers of 1 megawatt of former capacity. So this is the scenario. So here is the potential for India, that the intelligent engineering capability, the young talented manpower, availability of raw material, reducing the production cost, not compromising with the quality. Sky is the limit that we can be a world leader in the sector. As far as the EV ecosystem in India, the Paris Climate Agreement to reduce 30 to 35 emissions by 2030, it is already on record. So 30% our target is up to 2030, 30% private car will be electric, then 70% commercial vehicle will be electric, 40% buses will be electric, and 80% 2- and 3-wheelers by 2030 will be electric. Every time you are asking me the question that how it is going to happen. It is neither you need any propaganda for that. Now the going by petrol car, the cost is 10 rupees per kilometer. Going by diesel is supposed to be 8 rupees per liter.
and going by electric is 1 rupees per liter. सर तो कहीं ऐसा तो नहीं 1 rupees per kilometer. सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने दो, क्योंकि जितना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे उतना केतन और जितेंद्र और बाकियों को फायदा होगा कि लोग भागेंगे इलेक्ट्रिक की तरफ। तो सरकार कहेगी चलो बढ़ने दो मैं और दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं मेरे डिपार्टमेंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट कर रहा हूँ। एफिडेविट इसलिए करना पड़ रहा है कि हमने यूरो 6 इमिशन नॉर्म स्वीकार किए हैं, और आप मेरी बात को शांति से सुनो और आप इसको जरूर अमल में लाओ, आपके फायदे की। अब पेट्रोल का भाव 110 रुपये 115 रुपये किलोमीटर हुआ है। अब मर्सिडीज, BMW, टोयोटो, होंडा जितने को है, ये सब गाड़ियाँ ब्राज़ील में फ्लेक्स इंजन पे चलती है। फ्लेक्स इंजन से कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं उसको मैंडेटरी कर रहा हूँ स्कूटर को, ऑटो रिक्शा को भी। तो इसका मतलब ऑप्शन आपके साथ होगा कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। इथेनॉल का भाव 65 रुपये लीटर होगा और पेट्रोल का 110 रुपये लीटर होगा। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है, तो 1 लीटर 800 ml ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर ऑफ इथेनॉल, तो भी आपकी 20 से 25 रुपये लीटर बचत होगी। और इसलिए आने वाले समय में इथेनॉल के पंप देश में शुरू हुए। प्रधानमंत्री जी ने पूना में 3 इथेनॉल पंप का इनॉग्रेशन कर दिया। अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सभी ऑयल पेट्रोल पंप के लिए इथेनॉल के जो आउटलेट्स है वो ओपन करने की अनुमति दे दी है। हमारे देश के किसान इथेनॉल तैयार कर रहे हैं। पहले शक्कर से, मोलाइसिस से होता था, अब मक्के से, चावल से, सबसे बनेगा। और अब इंडिजिनस फ्यूल जो ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन एकदम नहीं के बराबर है, उससे आपकी बचत भी होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। पर एक बड़ा चैलेंज गडकरी जी ये है कि आखिरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चार्ज होनी पड़ती है, और जब चार्ज होती है तो कई बार चार्जिंग स्टेशन रन करता है फॉसिल फ्यूल्स पे या फिर रन करता है सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे, और सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए होती है लिथियम। लिथियम का कब्जा पूरा चाइनीज़ के हाथों में है। तो ऐसा तो नहीं कि हम जो पूरी कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ने की, उसके साथ नए चैलेंजेस आते हैं। जब तक वो फॉसिल फ्यूल से ही चलेगा तो कैसे हम लोग बढ़ पाए? क्या होता है, ये जो कुछ बार पब्लिक में परसेप्शन बैठ जाते हैं, उसको सुधारने के लिए टाइम लगता है। पहली बात ऐसी है कि लिथियम आयन बैटरी 81% इंडिया में बनती है। अब इसका पहले जो रेट था उससे 35 से 40%, 50% रेट कम हो गया है। दूसरा, हमने जो कार स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है, उसमें से जो अभी सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज वर्ल्ड में है, जो लिथियम और एल्यूमिनियम, और इसके साथ साथ इसमें जो स्क्रैपिंग होगा, इससे लिथियम भी मिलेगा और एल्यूमिनियम भी मिलेगा। तो ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी इतनी अच्छी है कि हमारे देश में इतने व्हीकल भंगार में है, और अब वर्ल्ड का हमने पोर्ट का जो ड्राफ्ट है वो 18 मीटर कर दिया है। दुनिया का भंगार हमारे देश में हम लाएंगे, और पूरा उससे कॉपर, एल्यूमिनियम इंपोर्ट करने के बजाय वो पूरा हम लोग स्क्रैपिंग से निकालेंगे, तो कॉस्ट भी कम होगी। और मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा एक पब्लिक में चर्चा होती कि पूरे चाइनीज़ ने लिथियम आयन की सब माइंस ले ली है, अब लिथियम आयन वर्ल्ड में कहीं है नहीं है, उसका शॉर्टेज है। तो पहली बात, लिथियम आयन का कोई शॉर्टेज नहीं है, उसकी कॉस्ट कम हो रही है। दूसरी बात, बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन के साथ एयर आयन और मेटल आयन 2 टेक्नोलॉजी है। उसमें लिथियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन और स्टील आयन, एल्यूमिनियम आयन, इस पर रिसर्च चल रहा है, इसरो में चल रहा है, IITs कर रही है, DRDO कर रही है, और हमको मिला भी है, उसमें ब्रेक थ्रू भी मिला है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक बैटरी में हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, और निश्चित रूप से हम उसको एक्सपोर्ट करने वाले बनेंगे। इतना पोटेंशियल है। और हमारे लोग अर्जेंटीना में, वहाँ भी दुनिया में लिथियम माइंस को भी ले रहे हैं, और मुझे नहीं लगता लिथियम आयन इज ए प्रॉब्लम। पर जब तक लिथियम आयन चलेगा, उसके बाद ये केमिस्ट्री बदलेगी, और हमारा एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम आयन भी आएगा, और ग्रीन हाइड्रोजन भी तुरंत आ जाएगा। Ketan, give us a sense of the outlook. Electric vehicles have been in the news. Yeah. We're seeing big booking numbers. We're seeing long queues and waiting lists. So how do you see the industry evolved? Are you getting a sense that it's a very crucial inflection point where the EV industry finds itself in right now? No, I think this particular year has been transforming for this industry. I can tell you from ground reality that the target which sir has set, I think 2030 onwards, every single vehicle which will be sold will be electric, 110% sure. The kind of
people's interest, which we are seeing from tier 1 to tier 4 towns, right from Hyderabad to Lalsot, it's amazing. People are just flocking and buying a technology which is, some might say it's not proven in India, but people are adopting it very widely, especially I'm talking about two-wheelers because that I have a first-hand experience. Our stocks get finished overnight. It's crazy. 105 rupees petrol has helped. FAME policy, scrappage policy, all of this is helping us, in driving that future. And it is very, very important. I think this particular year, especially after coming out of COVID and realizing the value of human lives, I think everybody realizes that we need to work for a sustainable future and work for solar energy, electric vehicles, technologies which can actually sustain us. Otherwise, you see, billionaires and the richest people in Earth are already setting up colonies in Mars. It is crazy. It is insane. You get scared that why people are doing that. But I think to make Earth sustainable, these are the things which have to be done now. Otherwise, it will be too late. Gadkari ji, let's look at some of the challenges in the electric vehicles industry. One is, for example, the different standards. We see two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers all pushing for different standards. And that, in the case of a new technology or a new industry, is often a big challenge. What is the government doing to try and push for standardization of norms? For example, on the issue of battery swapping or having your own batteries. And there are different views. Different companies have different business plans, and naturally they have vested interests. How are you therefore trying to bring about standardization so that consumers are not having to suffer between the different business priorities of different establishments? The problem is that different companies and even startup and research organizations are continuously making a lot of research. So today we are not in position to standardize it, but I am giving you the example. Now company is giving you the electric charger at your home. I have electric car in my home in Nagpur. I always use that. So in my home I charge my car. I don't have any problem. Even I go to Amravati or Akola, I can charge there. The charger is with me. So the standardized laws are already framed by the ministry and research is going on. And I am also telling you the interesting case. The total EV sold 1,21,623 units, electric two-wheelers 57,000, 47%, electric three-wheelers 59%, 48%, electric cars 4,700, 4%. So this is rise in electric two-wheeler sales is 140% and electric cars 190% compared to pre-COVID period 2019. So my only suggestion to you that market is vastly growing up. And the people like all these things, they are giving new technology, new innovation, new research. And every time this is the industry where the Indian IITs, institution, research institution, doing excellent research job. So we should not fix up anything. And we should allow the people to make the research and giving choice to the consumer that you can select it. There is no problem. And as far as the battery swapping is concerned, we are giving permission for them, no problem. We have already made the regulation for that. Now there is no problem. Jitendra, one of the biggest concerns that consumers have is range anxiety. The fear that you leave from home, that there is something that you need to do, और गाड़ी रास्ते में बंद हो गई. The industry is trying to overcome that fear. Ranges are becoming more and more realistic. मैं आपको एक बात थोड़ा रोक के पूछता हूँ. एक कस्टमर का नाम बताओ जिसकी गाड़ी इलेक्ट्रिक के रास्ते में बंद पड़ी है. क्यों ऐसे आप निगेटिव? इसलिए उसको anxiety कहते हैं. Range मैं आपको anxiety. बताता हूँ, ये होने की संभावना नहीं है. ये विशफुल थिंकिंग है. गाड़ी अभी जो बड़ी गाड़ी है वो 400 किलोमीटर तक चार्ज हो रही है. और एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में एवरेज स्कूटर और आपकी गाड़ी है समझो, आप दिन भर में दिल्ली में घूम घूम के कितना घूमते होंगे? 100 किलोमीटर. अब एक बार 250 किलोमीटर गाड़ी चार्ज हुई और रात को आपने गैरेज में रखी, चार्जिंग को लगाया, तो पहली बात ये बिल्कुल होने वाला नहीं है. ये विशफुल थिंकिंग है. आई एम एश्योरिंग यू कि कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 300-400 किलोमीटर. एक बात जरूर है कि अब रिसर्च हो रहा है कि बैटरी में इलेक्ट्रिक स्टोरेज की कैपेसिटी कब ज़्यादा बढ़ा है. जैसे LNG की अभी जो टेक्नोलॉजी आई है कि एक ट्रक 1600 किलोमीटर चलेगा तो भी उसको LNG भरने की ज़रूरत नहीं. वैसे अब इलेक्ट्रिक में ये रिसर्च होगा
कि एक बार आपने गाड़ी चार्ज की तो 800 किलोमीटर नो प्रॉब्लम। तो अब 800 किलोमीटर चलता कौन है? 800 किलोमीटर यानी दिल्ली से आप मुंबई थोड़ी कोई जाने वाला इतनी गाड़ी थोड़ी चलाता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। Jitendra, the concerns, what Gadkari ji is saying is probably true, that people don't really run out of juice when they're out on the roads, but range anxiety is one of the biggest factors in mass adoption of EVs. To what extent do you think the industry in India has been able to overcome those apprehensions? Rahul, if you see about the range anxiety, I think you have used the right word, anxiety. Actually, it is not the requirement. If you see, it's a psychology of a customer in India, especially when you talk about the vehicle, whether it's two-wheeler or the four-wheeler, they always think that where I will fill the fuel, okay, in case of IC engine. But when we talk about the EV, we always talk about only two things. One is the infrastructure, like the charging station. Another is that if I go out from my home, whether I can come back or not. If you see in the two-wheeler, as Gadkari ji has said, rightly said, in four-wheeler, you cannot go beyond 400 kilometers a day. But if you talk about the two-wheeler, you never ever go more than 60, 70, 80 kilometers a day. Maybe there is very stray cases where you go up to 100 kilometers, 120 kilometers. For example, if you talk about, I'll just give you one example, our scooter, Okinawa. Our highest range goes up to 140 kilometers in a single charge. And we have a fast charging. It means it will charge 45 minutes, 80% of the battery. It means 10 minutes you can go 20 kilometers if you charge. And those can be charged anywhere, any place, like you are charging your mobile phone. Like you just use at charging your mobile phone at your pawn shop, tea shop, maybe you can charge at your office, home. So it's just a anxiety. It is not the real cause actually. It is only about the awareness, where the people are not aware about the awareness about the electric vehicles, their usage, how to use it, how to take this technology way forward. Because if you see, the technology is emerging every day in this segment. If you see, now this vehicle become more electric than more electronic vehicle actually. So fast charging is already there. They will remove their anxiety about that. And the scooters, two-wheelers, as well as the four-wheelers available with the long ranges is available in the market. It is only about the awareness, where the customer knows about it, which product, which company providing the right product for the right consumer. So I think anxiety is only anxiety. It's not the real thing actually. Gadkari ji, one of the challenges is the availability of charging infrastructure. And companies say it's a chicken and egg situation. A, who sets up the charging infrastructure? If the companies have to spend money, then their economics per unit are not viable. They're expecting the government to set up charging infrastructure, and the government has made some effort, but it's very limited if we are actually thinking of mass adoption of electric vehicles. How do you see this issue of building charging infrastructure? Is it a public good? Is it something the government is committed to building? पहली बात तो ऐसी है कि हर व्हीकल के साथ चार्जर मिल रहा है। तो जैसे अभी इन्होंने कहा कि स्कूटर मैक्सिमम 60 किलोमीटर चलती है और 140 किलोमीटर एक बार चार्ज किया 45 मिनट में हो जाती है। तो रात को चार्जिंग किया तो दूसरे दिन पूरे दिन चलेगा, नो प्रॉब्लम। कार का भी ऐसा है, व्हीकल कोई भी इलेक्ट्रिक का ऐसा है। पर अब NHAI के तरफ से मैं 350 रोड साइड एमिनिटीज़ पेट्रोल पंप बना रहा हूँ मुंबई दिल्ली हाईवे पे, यानी पूरे देश में ग्रीन हाईवेज पर, और उसमें अब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बना रहे हैं। अगर हाईवे में अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली से आप अगर अभी हम जो हाईवे बना रहे हैं कि दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई ये 12 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। तो नेचुरली ये इतने रोड अच्छे बन रहे हैं। अभी मैं गाड़ी टेस्टिंग ड्राइव था, नहीं तो वो कानून के विरोध में आप बोलोगे आपने कानून भंग किया, तो मैं 170 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी गई और मैं आराम से बैठा था। तो अब धीरे धीरे उसी रोड पर रोड साइड मैं एक सवाल पूछूं सर आपसे, आपने सही बात है ट्रैफिक आपने जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, उसको बहुत इंप्रूव किया, लेकिन स्पीड लिमिट ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे सब जगह वो CCTV लगा हुआ है, डर लगता है कि थोड़े से तेज़ गए और फट से कटा चालान, और आजकल तो घर पहुँच जाता है चालान। तो इसको थोड़ा इंडिया में स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और मैं इसमें अभी तक कुछ कर नहीं पाया। दिस इज़ वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट। क्यों नहीं कर पाया? ये जो परसेप्शन वाली बात होती ना, रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, और ऐसे कुछ जजमेंट है हाई कोर्ट के कि इससे ज़्यादा स्पीड नहीं चलेगी।
अब प्रॉब्लम यह है कि एक्सीडेंट का कारण केवल स्पीड ऐसा नहीं है, अब एक्सिस कंट्रोल ग्रीन हाईवेज है। अब यहाँ कोई आता नहीं, कुत्ता भी नहीं आ सकता, पूरा बंद है, तो वहाँ स्पीड में कोई अड़चन नहीं। तो मैं अभी तक ये स्पीड की फाइल को घुमाता हूँ हर बार, ये हाई कोर्ट निर्णय देता है, वो सुप्रीम कोर्ट देता है। अभी मैंने ये स्टैंड लिया है कि पार्लियामेंट में जाना है तो बिल बनाकर जाऊंगा और ये स्पीड के सब पैरामीटर बदल दूंगा। स्लो स्पीड पे मूव कर रही है आपकी फाइल। सर इसमें मेरी दिक्कत यह है कि ये स्लो इसलिए मूव हो रहा है कि परसेप्शन जो है और कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, वो इस मानसिकता में, जैसे आपने कहा ना कि ये आप सही कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो हम क्या करेंगे, ये जो होगा नहीं, होता नहीं, होने वाला नहीं है, पर दिमाग में बैठा हुआ है। वैसे स्पीड के बारे में पूरे लोगों के मन में बैठा कि स्पीड बढ़ाई तो एक्सीडेंट होंगे। अब मैं उससे बाहर निकालकर मैंने वो फाइल लगभग तैयार की है। एक्सप्रेस हाईवे की स्पीड क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट रोड की क्या होगी। नहीं तो पूरा बताइए ना, एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके हिसाब से हिंदुस्तान में गडकरी जी की जो नई बड़ी सड़कें हैं उस पर क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए? देखिए, ये डोंट टेक इट एज माय कमिटमेंट और डिक्लेरेशन, क्योंकि मैं मंत्री हूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय है। पर मैं कोई अच्छी बात होगी तो कोर्ट में मैं मानता हूँ कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जनता की अदालत है, कानून बनाने का हमारा अधिकार है, कानून को इंटरप्रेट करने का अधिकार हमारे जजेस को है, उनका निर्णय हम स्वीकार करेंगे। तो अब मेरा जो व्यक्तिगत मत है, इट इज़ नॉट ऑफिशियल, बट मैं उस लाइन में सोच रहा हूँ कि ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल ये मैक्सिमम 120 तक ले जाना चाहिए, 120 to 140, ये मेरा थिंकिंग है। जो नेशनल हाईवे है 4 लेन, वहाँ कम से कम 100 किलोमीटर तक जाना चाहिए। फिर जो 2 लेन पेव शोल्डर है उसमें 80 किलोमीटर तक जाना चाहिए। और शहरों में जो रोड है अब से, इसमें से 75 किलोमीटर तक अलाउ करना चाहिए। मैं एक सवाल पूछूं? हाँ। आपने कहा आप दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंच सकते हो, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में पहुंच सकते हो। अगर आपने 120 भी कर दी ना तब भी नहीं पहुंचोगे। कैसे सर, कैसे? आपको स्पीड लिमिट को, जैसे वहाँ अगर आप यूके देखो, यूएस देखो, वहाँ पे स्पीड लिमिट्स और प्रैक्टिकल हैं, और खासतौर से वो तो 300 तक गए हैं। पर आप एक बात समझिए कि बीइंग ए मिनिस्टर आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन कि आज अगर मैं टेक्निकली कर सकता हूँ 200 किलोमीटर की स्पीड पर आवर, वो इस पर मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। 180 भी कर, इतने अच्छा हाईवे बनाया हमने, एक्सेस कंट्रोल है। पर पब्लिक को इस आइडिया को डाइजेस्ट करना, इट विल टेक सम टाइम। तो हम फर्स्ट फेज में ये करेंगे, उसका 1 आध साल एक्सपीरियंस देखने के बाद। तो अभी आप 140 किलोमीटर पर आवर पे पुश कर 120, क्योंकि देखो मैं जब अपनी बात रखता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट के जजमेंट, सबकी राय लेकर मुझे निर्णय करना पड़ेगा। मैं इस मत का हूँ कि बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने कुछ ट्रायल भी किए। आप कभी दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाकर 160, 160, 170 में जाओ, आपको कोई लगता ही नहीं, कोई कंफर्ट लेवल बिल्कुल अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक इसमें एकदम इस बात को, आइडिया को मैंने 180 कर दिया तो आज तक पर ही न्यूज़ चली जाएगी, नितिन गडकरी ने 180 किया, लोगों में नाराज चालू हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम। गडकरी जी, अभी हाल ही में मैं प्रयागराज गया था और हम लोग नेशनल हाईवे की सड़क पे थे और सड़क टूटी हुई थी, खड्डे थे उसमें और बारिश हुई। तो मैंने पूछा ये सड़क का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सड़क हमने बनाई तो थी, नई सड़क थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक बह गई, अब ख़राब हो गई है, बारिश का फिर से ठीक करेंगे। तो मुझे याद आया कि आप इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ही आए थे जब आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने थे, और आपने प्रॉमिस किया था कि आप कंक्रीट सड़कों की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी सड़कों में सीमेंट होगा, और आप पूरा एक्सप्लेन करके गए, जैसे आप आज ईवीज के बारे में समझा रहे हैं कि देखो जब मैं सड़क ऐसी बना दूंगा, आप देखना ये इतने कॉन्ट्रैक्टर माफिया पैसे लेते हैं, सड़क फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5-6 साल वही सड़क दौड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बड़े, जैसे आप अभी जोश में बोल रहे हैं वैसे आपने बोला। तो उस टाइम पे मुझे स्ट्राइक किया कि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपने प्रॉमिस किया था कि सड़कें आपकी ख़राब नहीं होंगी। अब जो आप सड़कें आप बना रहे हो, मतलब जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर करिए, वो भी सड़कें बारिश में बह जाती हैं। देखिए, अभी ऐसा है कि हमारे 60 to 70% सड़कें पूरी कंक्रीट की बन रही, और ये भी सच है कि मैं आपके कार्यक्रम में मैंने कहा था कि 100% हम कंक्रीट की सड़कें बनाएंगे, और मैं देश के सीमेंट इंडस्ट्री का 40% सीमेंट कंज्यूम करता हूँ। पर आपके यहाँ मैंने जो कहा उसका कोई लोग गलत फ़ायदा लेंगे ऐसा मुझे कभी ध्यान में नहीं आया। मैं जब सीमेंट को लेने लगा और सीमेंट की सब सड़कें बनाने लगा, तो सीमेंट वालों ने कार्टेल करके 180 रुपये की बैग
380 रुपये में लेके गए। और जब मुझे इस बात का दुख हुआ कि भाई देश की सीमेंट इंडस्ट्री को मैंने इतना बड़ा ऑक्सीजन दिया है, पूरा 40% सीमेंट मैं खरीद रहा हूँ, और अब ये इस प्रकार से कार्टेल करके रेट बढ़ा रहे, तो मेरे मन में उसकी चीड़ आई और फिर मैंने उसका सीमेंट मैंडेटरी करने का निकाल दिया। उसमें क्या हुआ कि कुछ सड़कें अब बिटुमेन में बन रही, कुछ सड़कें सीमेंट में बन रही। इसका कारण ये सीमेंट इंडस्ट्री है। अब मैं स्टील और सीमेंट का यूज़ कम करने का स्ट्रैटेजी, वो खुले रूप पे बोल रहा हूँ। अभी जैसे ये ब्रिज बनता है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर 30 मीटर होता है हिंदुस्तान में। तो मलेशिया और सिंगापुर और अमेरिकन कोड में ऐसा है कि ये जो बीच वाला बीम है ना, ये इसको स्टील फाइबर में कास्ट करना। तो स्टील फाइबर में कास्ट किया तो ये 30 मीटर का डिस्टेंस मैं 120 मीटर बढ़ा दूंगा, तो 3 पियर कम हो गए, तो स्टील कम लगेगा। तो अब मैं ये हर जगह स्टील कैसे कम यूज़ हो, सीमेंट कैसे कम यूज़ हो, ये मैं खुले रूप से कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब ये कर रहा हूँ, ये कार्टेल करके भाव बढ़ाने की जो वृत्ति है, इसके कारण थोड़ा सा मैं उसमें पीछे हट गया। इसलिए अब और एक नियम बना रहा हूँ कि बरसात की सरासरी रेंज की जो जिस एरिया में ज़्यादा है सरासरी से, वहाँ अब कंक्रीट रोड ही बनेंगे। और दूसरी बात, आपका जन्म नासिक में हुआ है, तो नासिक से पेट करके, अभी मैं 3 दिन पहले नासिक में था, तो वहाँ हमने बिटुमेन रोड पर 8 इंची का वाइट टॉपिंग यानी सीमेंट कर किया है, तो वो भी सक्सेसफुल हुआ है। तो अब धीरे धीरे ऐसे खराब हुए बिटुमेन रोड को हम लोग 8 या 6 इंच का सीमेंट कॉन्क्रीटिंग करेंगे। दूसरा एक अच्छा है कि बिटुमेन रोड बनाकर एक मुझे अभी प्रेजेंटेशन मिला है कि जैसे सीमेंट का पतला तैयार करके वो बिटुमेन रोड के अंदर डाल देना, तो उसके कारण वो अंदर जाता है और उसको बिटुमेन को और पच्चा पकड़ लेता है। तो वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर ये जो बात थी, ये थोड़ा मैं ढीला पड़ा इसका कारण, अगर ये रेट नहीं बढ़ाते तो मैं इनके प्रोडक्शन को पूरा खरीद लेता। मैंने रेट कॉन्ट्रैक्ट भी किया था कि तुम्हारा प्रोडक्शन हम पूरा खरीद लेंगे। पर दुर्भाग्यवश ये जो प्रवृत्ति है कि मौका मिलने के बाद लूटने की लोगों को, इसके कारण फिर वो बिटुमेन हुआ। अभी बिटुमेन वालों ने भाव, तो बिटुमेन में मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ, वेस्ट टू वेल्थ, ये जो टायर है, ये इसका इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम था। हमारे देश में फटे टायर, खराब टायर इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी। मैं पीछे पड़ा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, वो परमिशन मिल गई। अब इससे जो रबर की पाउडर निकल रहे हैं वो बिटुमेन में डालकर वो बिटुमेन अच्छा बना रहे स्ट्रॉन्ग, ताकि रोड की क्वालिटी सुधर जाए। तो वेस्ट टू वेल्थ वाली भी पॉलिसी है। और ये सीमेंट की बात को अभी मैं ऐसा लॉ बनाऊंगा कि जहाँ मिनिमम एवरेज से ज़्यादा रेंज आते हैं वहाँ कंक्रीट ही बनाएंगे। वैसे और कंक्रीट के भी बहुत रोड बना, अभी आप दिल्ली मुंबई जाओ, पूरा कंक्रीट है। वो आपने अपने यहाँ नागपुर में सारी बना ली, आप दिखा सारी रहे थे। कंक्रीट की बनी है। If you ever go to Nagpur, Gadkari ji has carried out a massive transformation of the whole city. तो ये तो फायदा, अगर आप हमारे यहाँ के एमपी होते हमारा वाला बेटर कर देते। वहाँ पे तो नागपुर इज अ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म सिटी थैंक्स टू यू। एक छोटा सा अच्छा उस पर कभी आप पहुँचाइए लोगों के पास, और आपके पास जब ये मुख्यमंत्री आते हैं तब बिटुमेन रोड को उखाड़कर उसको अच्छा स्ट्रेनिंग करके उसके ऊपर 6 इंच का, 8 इंच का, 20 mm का कंक्रीट तैयार कर देना। वो भी 15-20 साल 25 साल कुछ नहीं होता। और मैं जो रोड बना रहा हूँ वो 1.5 फीट के है, वो पेवर है। अभी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हमने बड़ौदा में, वो ऐसा है कि 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड हमने 24 घंटे में बनाया। सोलापुर विजापुर में 26 किलोमीटर 1 लेन बिटुमेन रोड 24 घंटे में बना है। तो अब टेक्नोलॉजी भी आई है, पर अब धीरे धीरे इसको उखाड़कर 8 इंच का कंक्रीट करना, दैट कैन बी ए गुड ऑप्शन। टेस्ला हैज बीन इन द न्यूज़, गडकरी जी। टेस्ला के अधिकारी अभी कैपिटल में थे, टेस्ला की गाड़ियां घूम रही थी, आपने चलाई टेस्ला की गाड़ी। कब आएगी ऑफिशियली, कब खरीद, मतलब हम तो शायद नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कब खरीद सकते हैं टेस्ला की? नहीं, टेस्ला सस्ती मिल जाएगी, 35 लाख रुपए में आएगी गाड़ी। आपको टेस्ला की कीमत ज़्यादा नहीं है और उसका कॉस्टिंग भी कम है। और इंडिया में हमारे जो वेंडर्स है वो पूरा टेस्ला को दे सकते हैं मटेरियल। अब थोड़ा सा एक मेरे मन की बात है जो मैंने टेस्ला को बार बार कही कि चाइना में बनाकर हिंदुस्तान में बेचने वाला काम मत करो। हिंदुस्तान में आओ, हमको मदद करते हैं, यहाँ हमारे वेंडर्स हैं, हमारे यहाँ बनाओ, हमारे यहाँ बेचो, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करो। जो मदद चाहिए आपको हमारी सरकार करेगी। पर वो धीरे धीरे हिंदुस्तान का डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है और हमारे यहाँ इतने बड़े प्रमाण पर डिमांड है कि 1-2 बातें मैं अक्सर कहता हूँ। हिंदुस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा ऑटोमोबाइल का खरीदी में।
टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, आप जितने लोग, एक घर में 3 लोग और 4 गाड़ियां हैं। और दिल्ली में तो अरुण पुरी जी की क्षमा मांगकर बताता हूँ, यहाँ पार्किंग करते ही नहीं। जैसे सरकार के रोड है ये इनके लिए बना है, इसलिए गाड़ियाँ रोड पर खड़ी कर देते हैं और पार्किंग है। मुंबई में ऐसा नहीं होता, हर जगह पर पार्किंग होता है। तो अब धीरे धीरे इसमें कोई नहीं कि टेस्ला को आएगी, अभी मार्केटिंग उनका शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि आएगा। और दूसरा, टेस्ला के बराबर और एक अमेरिकन ब्रांड है, वो भी ऑलरेडी उसका भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ है। दूसरी बात जो बहुत, अब टेस्ला तो अच्छी है, मैंने चला, इतनी लाइट सुंदर है, टेक्नोलॉजी बहुत ही बेस्ट है, उसकी बराबर की टेक्नोलॉजी अब टाटा ने कोई कम अच्छी कार नहीं बनाई इलेक्ट्रिक की, ये लैंड रोवर ने अच्छी नहीं बनाई है, यह सब जितने लोग टोयोटो बना रही है अभी वो उन्होंने भी अच्छी बनाई है। अब ऑल इंडियन ब्रांड्स, मर्सिडीज हो, BMW, जितने यहाँ हैं वो भी लगातार रिसर्च कर रही। देखो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं इनका धन्यवाद दूंगा, ये यंग टैलेंटेड लड़के जो है हिंदुस्तान के, ये इतना रिसर्च कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप इतनी न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। मैं मानता हूं कि 2-4 साल में ये सब टेस्ला के बराबर रहेंगे। आपको एक वो उसने अभी उनके फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के लिए मैं जा रहा हूँ, ओला वाले भाविश अग्रवाल, वो आशिया का सबसे बड़ा, उसका कितना बुकिंग होगा स्कूटर का, 1 लाख रुपए की स्कूटर। वही तो अभी केतन बता रहा था कि वहाँ डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सप्लाई चल नहीं पा रही है। तो आई थिंक यू गॉट इनटू द राइट स्पेस एट द राइट टाइम। 100%, ये बिल्कुल, ये लोग ये देखो। और दूसरी बात, आपको एक बात बताओ, ये भी आप लोगों पर जाओ, आत्मनिर्भर भारत के लिए टेस्ला अच्छी है। नहीं तो आपने कहा कि ये इंडिया में लोग बना- भी टेस्ला जैसा प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये हिंदुस्तान में काबिलियत है और इनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट उनकी तुलना में बहुत कम है। सर आपने टेस्ला को कहा कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? तो मेरा उनका डायलॉग अमेरिका में था, तब से बहुत चल रहा है, अभी भी परसों आए थे। अभी मुझे लगता है, देखो जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं राहुल को कभी नहीं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक कार खरीदी करो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख देता हूँ कि 1 साल के अंदर राहुल कन्वर की कार जो होगी वो इलेक्ट्रिक की होगी, क्योंकि उसको पैसे बचते वो लेने वाला है। सो बाकी वैसे का सर आपके पेट्रोल के प्राइस पूरे कर देंगे। पेट्रोल को बंद करना है जी, वही मैं पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट को बंद करना, पोल्यूशन को कम करना, और बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, CNG, और अगर मजबूरी है तो LNG और LPG यूज करेंगे। बाकी ये जो पेट्रोल डीजल का पोल्यूशन, देखो आप दिल्ली है, आप भुगत भोगिए हो, कितना पोल्यूशन है। हमारे डॉक्टर के 50% बिल हमारे एयर पोल्यूशन के और वाटर पोल्यूशन के कारण जा रहे हैं। और इसलिए मैं, बहुत आइडिया क्लियर है मेरी, मैं 2009 से बोल रहा हूँ, तब मैं अकेला था, तब मुझे लोग आउट ऑफ बॉक्स बोल रहा था, मेरी बात सुनने में अड़चन आ रही थी, ये क्या बोल रहा है इथेनॉल इथेनॉल। अब दुनिया बोल रही है, वर्ल्ड बोल रहा है, और पेट्रोल डीजल के ऊपर अब दादागिरी किसी देश की नहीं चलेगी। अल्टरनेटिव एनर्जी का ऑप्शन है, और ग्रीन हाइड्रोजन ये फ्यूचर फ्यूल है, और हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाली वर्ल्ड की पहले नंबर की ताकत होगी। ये प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाकर दिशा दी है, और उसमें भी इतना काम हो रहा है कि वी विल बी द वर्ल्ड लीडर। जैसे अभी ये क्रूड ऑयल पर डिक्टेट कर रहे हैं ना टर्म, वैसे हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अपनी टर्म डिक्टेट करेगा। So Ketan, you are very fortuitous. You've got these lovely tailwinds. Part of it could be being at the right place at the right time. But part of it is just this mass adoption globally from ICE, combustion engines to electric vehicles. So give us a sense of the point that you were making about demand versus supply. And do you see the EV industry in time being run by young Indian startups such as yours? Or as the big boys come in, whether it's the Teslas or the Tatas or the Toyotas, they're moving to EVs in a very big way themselves and coming up with very sophisticated EV technologies? So I think one big difference we need to realize is, if you see IC engine, that had a very big entry barrier, and very few companies, like if I talk about two-wheelers, only 3 or 4 companies have controlled the entire 1.5 lakh crore market for 30-40 years. Similarly, for four-wheelers, the IC technology had been, sort of controlled with very few players. But if you see electric vehicle technology, that is, the new companies have already taken a lead much ahead of the existing players. And even if you see Tesla, it was kind of on the verge of bankruptcy a few years back. It's only last 2 or 3 years they've just come out, and it was a startup in a way, a large startup, but it was a startup a few years back. So I think that has really given us inspiration for companies like us that yes,
we can not only compete with the existing players, but we can beat them in technology and adoption. And because we don't have a backlog, we don't need to have our IC, we don't need to promote the IC technology also, and EV is a backup for that. For us, EV is the only future, and we have to just kill the other, things and promote the electric technology. So I think the vision and the mission, which is very, very clear, it's a single point agenda, and I think because of the entry barriers which are not there in the electric vehicle technology, and it is available for all the new companies to innovate and research on, I think a lot of new companies will take a lead and actually become leaders in the future. Gadkari ji, which one do you think will be the more sustainable option? BAS, which is battery as a service, or do you see people having their own batteries and sticking to them and charging them? Because जैसे मैं phone का example देता हूँ, this whole concept of phone के अंदर की जो बैटरी है, अब आप बोलो कि ये बैटरी निकाल दो, दूसरी बैटरी डाल दो, ग्लोबली लोग अलग अलग सोचते हैं, इंडिया में सोचते हैं यार मेरी बैटरी तो नई थी, अगर मैंने निकाल के दूसरे को दे दी, पुरानी वाली अगर खराब मिल गई. So people think like that, and that's only natural. That how do I know that the battery that I'm getting is as good as the one that I gave for charging? How do you see this play itself out over time? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, इसमें बड़ा विवाद था, और जो मैन्युफैक्चरर थे वो नहीं चाहते थे कि हम लोग इस स्वैपिंग पॉलिसी को अप्रूव करें. तो मैंने उनको कहा कि भाई, क्योंकि कैसा है कि जैसे एक ही यूनिट खरीदी करेंगे तो बैटरी वो वेंडर से अगर 100 रुपये में खरीदता है और अपनी कॉस्ट बढ़ा कर देता है तो नेचुरली उसमें भी वो प्रॉफिट कमाता है, तो हर आदमी ये चाहेगा. अब हमने कहा कि भाई ये अपने स्टैंडर्ड्स पक्के कर दिए हैं, तो आपके गाड़ी में आपको जो स्टैंडर्ड की बैटरी वो किसी भी कंपनी के लगा है, दैट इज तुम क्यों चिंता करते हो बैटरी के लिए, तो हमने उसको अलाउ कर दिया. ये जो छोटे लोग आएंगे, तो ये जो बड़े लोग हैं, तो कहीं भी ऐसा होता है हर फील्ड में कि बड़ा आदमी छोटे आदमी को कभी आगे नहीं आने देता. तो हमने कहा नथिंग डूइंग, कोई जो टेक्नोलॉजी लेके, एक कंपनी ने लाई टेक्नोलॉजी की एक चौक पर बैटरी चार्ज होके एक ऐसा सेल बना दिया, वो ऑटो रिक्शा चलाता है, अपनी बैटरी डालता है, उसकी निकालता है. फिर और कोई है, किसी ने और कहा कि तुम फ़ोन कर दो घर पे आप बैटरी पहुंचाएंगे. फिर ये जो अमेज़न टाइप कंपनी है, इन्होंने सब उनके जो घर भेजने वाली सर्विस वो पूरी इलेक्ट्रिक कर दी, तो उनको अलग प्रकार की सर्विस दी. अब क्या हुआ है कि हमारा जो गवर्नमेंट का अप्रोच है, जो भी आए वो टेक्नोलॉजी लाए, नए नए ऑप्शंस लाए, हमने कंज्यूमर पर छोड़ दिया. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इसमें क्या होगा, हम नहीं चाहते कि किसी की मोनोपोली बने, हम ये चाहते कि बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस, और नए नए लोग आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है उसमें ब्रांडेड कोई एक ही कंपनी पूरी मोनोपोली सेल ना करे, तो इनके जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स आकर अपनी क्वालिटी को बनाकर अच्छा वो भी मार्केट का शेयर ले. और इसलिए अवर एवरीथिंग इज ओपन, ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, और हमने सब इसको लिबरल इसमें ओपन कर दिया है और कंज्यूमर पर छोड़ दिया है. तुमको अगर सस्ती गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी इससे खरीदी करो, बैटरी उससे खरीदी करो. तुमको सेट खरीदना करना है तो ब्रांड वाली खरीदी करो. इसकी अफोर्डेबल स्थिति होगी, वैसा करें. Jitendra, while things are changing, the reality of the sales offtake figures at this moment are that the hype is more than the reality. And if you compare with China or if you compare with the United States, where actual sales of electric vehicles are much more, in India there seems to be increasing talk, but that talk is not matched by sales figures. Rahul, actually it's not the right scenario. I'll say like 4 or 5 years back when we talk about the EV, there's a lots of myth about the EV. People don't understand, as I told you, the technology, because that time the good right product is not available, because everyone who is sitting in this hall, everyone when they're born, they've seen only IC engines, the technology they've seen from last 150 years. So they don't understand this technology of EV. So adoption of new thing is always difficult actually. Because if you see, I'll just give you one, I remember one thing, when the first revolution 150 years ago happens, so the first World War was happen. When the second revolution come, second World War was happen. But now the third the revolution is coming, it may be possible, but no World War will happen. But now the war will come that will against, I think, disease, maybe environment. Because environment threat is one of the biggest thing as on today for all the people who are sitting here, all the globally. Because what we have did in the last 20 years, 100 years, so we cannot redo that thing.
But we have to do something for our next generation. And I think EV is one of the things with sustainable future, which can talk about that. And now, as you said, like US or the other country, developed country, where the EV is taking offtake, it's okay. But now the India is also coming into that path, maybe another down the line 2-3 years, you will see a growth path will be in multiple folds. It will not in a 10%, 20%. I think it will be 400%, 500% like this. So when we talk about IC engine, they sold 20 million vehicle a year, but EV is less than 1%. But if you see this year, next 2-3 years, I think this growth will be going to be 30% market capture in next 3-4 years. So I think it is going to happen in India. Because whenever new things come, revolution come, innovation come, and the technology evolving, as Gadkari ji said, maybe the startup, of course, just to convince the successful people is always difficult. And that is the reason when the startup like us, we came here, the government has supported a lot to us. And we bring the new technology, new innovation for that. And it's like that because I remember one thing, when I started this company, somebody told me, Mr. Sharma, it's a suicide for you. You are doing this. Because if you can sell, one of the veterans in this industry told me, Mr. Sharma, if you can sell 500 vehicles a year, I think you feel you achieve something in your life. And fortunately, in first year, we could sell 10,000 vehicles a year. And that is the thing which is startup. We have taken the dream, how to achieve it. And we did it, and we achieved it. And this is the support from government, awareness from journalists, the people like who are sitting here. It's only awareness. I think awareness is there. In next 2 years, I think what Mr. Gadkari said, rightly, maybe you will buy EV. Everyone is sitting in the room, I think 80% will go for EV. They understand the benefit of EV. It's not for economic side, of course for the social side also. And that is the need of our. This is my thinking about that. Gadkari ji, as we come to the end of this session, I want to ask you, in your term as Transport Minister, what is the one achievement that you're most proud of? I don't know, but I'm guessing, is it, say, the Zojila tunnel where you were recently and the efforts that you've made there? Or which is the one project that you look back with greatest joy at? And what is your biggest regret? Actually, frankly speaking, I never think in that line. Okay. But मेरी माँ जब मृत्यु के पहले तीर्थ यात्रा पे गई थी तो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कितनी कठिन है, तो हमारे यहाँ पंढरपुर, गाणगापुर और अक्कलकोट ऐसे 3 महाराष्ट्र में रिले, देहू, आळंदी सब ये थे। तो मैं मंत्री बना तब मैंने सोचा कि ये जो हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है और धार्मिक तीर्थाटन है, इसको मैं रोड अच्छे बनाऊंगा। तो आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने 4,500 करोड़ खर्चा करके बुद्ध सर्किट जो सारनाथ से लेकर पूरा अच्छा बनाया। अभी मैं अयोध्या में राम जानकी सर्किट बना रहा हूँ, करीब 12,000 करोड़ उस पर खर्चा कर रहा हूँ। और पूरा राम वनवास में गए, राम जानकी का जन्म जहाँ से हुआ नेपाल तक, तो सब रोड बना रहा हूँ। फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अब लगभग मैंने रोड बना लिया। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा इशू है, वो क्लियर हो जाएगा तो वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। तो एक प्रकार से जो पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत के रूप में यहाँ जो धार्मिक स्थान जाते थे, तब मैं वर्ल्ड में जब घूमता था तो मुझे वहाँ इतना नीट, क्लीन पार्किंग प्लेसेस, अच्छे रेस्टोरेंट, रोड अच्छे लगते थे। और हिंदुस्तान में जाओ तो सब जगह गड्ढे, गंदगी, पार्किंग प्लेस नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, तो बड़ा फील होता था। तो अब कम से कम हिंदुस्तान में चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका रोड के लिए अच्छा कनेक्टिविटी, ये मैंने प्रायोरिटी वाइज 5 साल पीछे लगकर काम हुआ है। अब इसमें छोटी सी कमी है। अभी मुझे रोप वे, केबल कार और फेनाकुलर रेलवे का काम भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अब हिमाचल के 15 मेरे पास आई। कल मैं जोजिला टनल गया था, वो बाल्टा कुछ तो भी गाँव है, वहाँ से 15 किलोमीटर बाबा अमरनाथ का है। तो मुझे तुरंत आया कि मैं यहाँ से बाल्टान, तो वहाँ से रोप वे बनाऊँगा ताकि गरीब से छोटे लोग, कितने भी एज के हो, वो वहाँ जाके दर्शन कर सकें। तो अभी मैं रोप वे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे का एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क। एंड योर बिगेस्ट रिग्रेट, वो एक चीज़ जो आप एकदम करना चाह रहे थे, आपने बताया सीमेंट माफिया के बारे में, बट सीमेंट माफिया के अलावा जो आप करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर। सीमेंट माफिया मत कहिए, मैं उनको माफिया नहीं कहता। हर आदमी अपने बिजनेस में कमाता है, पर मेरा कहना है टर्नओवर ज़्यादा प्रोडक्शन करके भी कमाओ। तो एक तो
मेरा जो रिग्रेट है कि हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के बाद में भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हिंदुस्तान में होते हैं। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती है और करीब 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अभी तमिलनाडु में 50% कमी आई है। अभी एक NGO के सहयोग से मुंबई पुणे हाईवे पे 50% कमी आई है। मैं वॉर फुटिंग पर कोशिश कर रहा हूँ और मरने वाले लोग 18 से 24 वयोगट के 65% लोग हैं। अब मैं बहुत दुखी हूँ कि इसको मैं कम करने की कोशिश वॉर फुटिंग पे कर रहा हूँ, पर जितना यश चाहिए उतना उसमें नहीं मिला है। पर अभी मैंने ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि लंग्स ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ये हमारे रोड पर हम हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस खड़ी रहे और एक आध बार एक्सीडेंट हुआ तो उसको तुरंत वहाँ से एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल में जाके उसकी जान बचे। तो ये एक जितना इसमें होना चाहिए वो नहीं हो पाया, उसका मुझे रिग्रेट है और मैंने कोशिश बहुत की और अभी भी कर रहा हूँ, पर समाज का और सबका सहयोग मिलेगा तो शायद ये हो पाएगा। Nitin Gadkari ji, the pandemic has given many people an opportunity to travel around the country much more than they would have otherwise. जो छुट्टियां लोग विदेश में मनाने चले जाते थे वो इंडिया में मनाएंगे, and that's really given everyone an opportunity firsthand to witness some of the work that's been done on building India's new highway backbone, and that's really transformative. We've had a great opportunity to talk to you about the electric revolution in India. We thank you for your time. We know your family really wanted you in Nagpur. You stayed back because you'd made a commitment to the India Today group, and we're deeply appreciative of that. Thank you so much for joining us here, and thank you, Ketan. Thank you, Jitin. Thank you very much. Thank you, gentlemen. Ladies and gentlemen, please raise a warm applause for our